Students, welcome back to your physics class. I hope all are good. Yesterday you have learnt about various devices that we can use to measure time, like hourglass, water clock, sundial that were used in the ancient times, and in the modern era we are using clocks, watches, stopwatches, etc. Today we will see that how we can express time or how we can represent time. There are two ways of expressing time. First is the 12-hour clock and second is the 24-hour clock. This type of clock, you all know, this we are using in our daily life to represent time, and this starts from 12 to 1, 2, 3, 4, 5, 11 up to so on 11, 12, and then it again starts from 1, 2, 3, 4, 5 up to so on 12, from the midnight to the noon, and then from the noon to the next midnight. नून नून मीन्स कि जो दोपहर तक का टाइम है और दोपहर का टाइम है, और मिडनाइट मीन्स कि जो रात का टाइम है उसको हम मिडनाइट बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज 24-hour क्लॉक. दिस इज यूज्ड रेयरली इन सम कंट्रीज एंड दिस इज यूज्ड बाय सम प्रोफेशनल्स, लाइक इन द प्रोफेशन ऑफ medicine. Doctors use this type of clock to represent or to clear the patient's medical history, so that there is no unclearness in the medical history of patient. Sometimes there may be an error in representing time in 12-hour clock, that we are writing 12 p.m. or 12, we have to write 12 a.m. or 12 p.m. but due to the missing of this p.m. or a.m. there can be some problem in the timing, so that the doctors are using 24-hour clock. I will explain you the 24-hour clock, how we can write time in this 24-hour clock further. So these are the two ways of expressing time. So we will start with one by one. First is 12-hour clock. These clocks are used in our homes and in wristwatches. So the clocks that are used in homes and wristwatches are 12-hour clock. In these clocks, the day, the full day, which is having 24 hours, is divided into two spans. That spans are of 12 hours. That is divided into two 12-hour spans or durations. Means कि जो पूरा दिन है उसको two parts में divide कर दिया जाता है. एक first part है जो midnight से लेके नेक्स्ट नून तक का, और जो उस नून से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक का. मतलब कि अगर हम बात करें पिछली रात से लेके लास्ट नाइट से लेके आज दोपहर तक का जो टाइम है उसके जो 12 घंटे होंगे उनमें, और आज दोपहर से लेके जो अगली रात तक का जो टाइम होगा वो वाले 12 घंटे, मतलब इन दोनों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है. तो ये जो है इसको इसलिए हम 12-hour क्लॉक कहते हैं क्योंकि ये एक पार्ट है 12 आवर्स का और ये दूसरा पार्ट है. ये जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिडनाइट, लास्ट मिडनाइट मतलब कि जो लास्ट रात से लेके पिछली रात से लेके आज टुडे नून तक का जो टाइम है 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक. और ये जो वाला है ये है आज की दोपहर से लेके टुडे नून से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक, मतलब आज दोपहर के 12 बजे से लेके अगली रात की 12 बजे तक का जो टाइम है वो नेक्स्ट 12 आवर्स हैं. तो ये जो दो स्पैन्स हैं these are divided, that means this 24 hours is divided into these two spans, 12 hours and 12 hours. These 12 hours representing from last midnight to today's noon, and these are from today's noon to next midnight. Is it clear? So next is the division of two 12-hour spans is represented by writing AM and PM. We will see what is AM and what is PM. As I have explained you that time interval between last midnight मतलब रात के 12 बजे से लेके दोपहर तक नून, that means दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग AM. मतलब उसके टाइम के साथ हम लिखेंगे AM. जैसे आपको पता ही है कि आप अगर टाइम बताते हो तो आप ऐसे बताते हो कि ये अब अगर हमें मॉर्निंग का टाइम बताना है तो हम उसके साथ AM लगाते हैं, और अगर हमें इवनिंग तक का टाइम बताना है तो हम उसके साथ PM लगाते हैं. तो मॉर्निंग का टाइम कब तक चलता है? वो चलता है 12 लास्ट जो 12 AM है, मतलब कि जो लास्ट नाइट से
12 बज रहे हैं और जो दोपहर के 12 बजे तक है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय राइटिंग AM, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम मिडनाइट, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको हम AM लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। 8 के साथ अगर हमें 8 बताना कि 8 बज रहे हैं तो हम उसके साथ लिखेंगे 8 AM। मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं तो उसके हम साथ लिखेंगे 8 AM। और अगर हमें बताना है कि मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं तो उसके साथ हम लिखेंगे 11 AM। ऐसे हम इसको टाइम को लिखेंगे। हियर AM मीन्स एंटी मेरिडियम। यहाँ पर जो एंटी मेरिडियम वर्ड है इट इज़ अ लैटिन वर्ड। एंटी का मतलब यहाँ पर है बिफोर और मेरिडियम का मतलब है मिड डे। सो इट मीन्स बिफोर मिड डे का जो टाइम है उसको हम AM लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ हम उसके बाद में हम AM लिखेंगे। बाद में मतलब किसके बाद में? टाइम के बाद में। 8 के बाद में AM लिखा हमने, 11 के बाद में AM लिख रहे हैं। ऐसे ही हम जो स्पैन है और जो इंटरवल है बिफोर फ्रॉम नून टू नेक्स्ट मिडनाइट, मतलब आज के दोपहर के 12 बजे से लेके जो नेक्स्ट अगली रात के 12 बजे तक है का जो टाइम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PM के साथ। इस टाइम और इस टाइम के बीच का जो टाइम है उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे PM के साथ। PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम इज ऑल्सो लैटिन वर्ड। यहाँ पर पोस्ट का मतलब है आफ्टर और मेरिडियम का मतलब है मिड डे। सो ये जो टाइम है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बताना है इवनिंग का टाइम, जैसे आप बोल रहे हो कि शाम के 7 बज रहे हैं तो जो शाम के 7 बज रहे हैं उसको हम 7 अकेला नहीं लिखेंगे, उसके साथ हम लिखेंगे 7, इट इज 7 PM, ठीक है। इस तरह से अगर हमें बोलना है कि रात के 11:15 हो रहे हैं तो ये जो 11:15 है ये हम अकेला नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम लिखेंगे 11:15 PM। तो जो टाइम होगा दोपहर से लेके आज की दोपहर से अगली रात तक का जो टाइम है उसको हम PM के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तो। सो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल मैंने ले रखी है, सेम है कि जो टाइम है फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून इज रिटन एज विद AM। जैसे कि 8 सुबह के मॉर्निंग टाइम के 8 और 10 को हम AM के साथ, 11 को भी हम AM के साथ लिखेंगे। और जो दोपहर के बाद वाला है आफ्टरनून इट इज रिटन एज 12 PM, मतलब जब 12 बज गए तो उसको हम PM लिखेंगे, 1 PM लिखेंगे और 7 PM लिखेंगे। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ टाइम in 12-hour clock. Next we will see 24-hour clock. So as I have already explained to you that this is used by some professionals like by doctors or in carrying the documentation. This is used, मतलब डॉक्यूमेंट्स को अगर रखना है उनकी वेरिफिकेशन करनी है तो ये 24-hour clock है जो यूज किया जाता है। दिस 24-hour clock is also known as military time. इसका हम military time भी बोलते हैं। एंड वी नो दैट दिस इज द अनदर वे ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम। इसमें क्या होता है कि जो न्यू डे है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ ए डे एंड एंड्स इन द नेक्स्ट मिडनाइट। मतलब क्या है कि पिछली रात के 12 बजे से लेके दिन स्टार्ट होगा और अगली रात के 12 बजे तक दिन खत्म होगा। तो ये जो 12 हम स्टार्ट करते हैं ये तो हम 12-hour clock में हम ले रहे हैं, पर जो टाइम 24-hour clock में वो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 24 पे। तो ये जो 12 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस इज इन 12-hour clock, बट इन 24-hour clock इट विल स्टार्ट फ्रॉम 00 to 24। 00 represents the midnight of the day and 24 represents the time of next midnight. So this is a way of representing time in 24-hour clock. I will further explain you to clear all the things. The time in this system is represented as HH:/MM:/SS, where HH represents RR means hours mean that are passed since midnight, मतलब कि जो midnight को पास कर चुके हैं hours उनकी वैल्यू होगी 00 और 23 के बीच में। और M रिप्रेजेंट्स हेयर मिनट्स दैट आर पास्ड सिंस लास्ट आवर, मतलब पिछले घंटे में जो टाइम जो मिनट्स पास हो चुके हैं एंड उनकी वैल्यू होगी 00 से 59। और जो SS हैं वो डिनोट कर रहे हैं सेकंड्स को और इनकी जो वैल्यू होगी सेकंड्स, कौन से सेकंड? जो लास्ट वाली मिनट को पास कर चुके हैं, तो इनकी जो वैल्यू होगी 00 से 59 होगी। आई विल फर्दर क्लियर यू बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सी हेयर, डोंट वरी। सो एक चीज और है इसमें कि इस सिस्टम में हमें AM और PM लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें हम जो टाइम है वो ले रहे हैं 0 से 24 आवर्स में।
तो यहाँ पर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, इवनिंग के 7 बज रहे हैं, कौन से 8 बज रहे हैं, मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो काउंटिंग कर रहे हैं वो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 7 12 से फिर हम जैसे हम 12 आवर क्लॉक में थे, 12 के बाद हम 1 स्टार्ट कर देते हैं, पर इस क्लॉक में हम 12 के बाद 1 ही स्टार्ट करेंगे। हम 12 बजे जो दोपहर के 12 बजे हम 1 तो स्टार्ट कर देते हैं 12 आवर क्लॉक में, बट इसमें हम क्या करेंगे 12 के बाद स्टार्ट क्या करेंगे 13, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, 16, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 24। तो इस तरह से इसमें टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई कैन शो यू द टेबल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम इन 24 आवर क्लॉक एंड इन 12 आवर क्लॉक। हाँ जी, यू कैन सी दैट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 00 इन 24 आवर क्लॉक मीन्स 12 midnight, 12 o'clock at midnight, मतलब रात के 12 बजे इन 12 आवर क्लॉक, और वी कैन से दैट स्टार्ट ऑफ द डे, और जिसको हम 12 AM लिखते हैं। और उसके बाद में 12 आवर क्लॉक में तो ऐसे चलता जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद 12 के बाद अब देखिए यहाँ तो ये भी 12 है, ठीक है, और इसके साथ हम AM जरूर लिखेंगे कि वेदर इट इज ऑफ इवनिंग और वेदर इट इज ऑफ मॉर्निंग। बट जब 12 यहाँ पर है, मतलब जो दोपहर का टाइम है नून, और जिसको हम PM लिखते हैं, उसके बाद तो यहाँ पर तो हम 12 आवर क्लॉक में 1 से स्टार्ट कर देते हैं दोपहर से, और फिर से वो रात के 12 बजे तक चलता है, मिडनाइट एट द एंड ऑफ द डे। पर यहाँ पर क्या है कि 12 के बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे 13 से, फिर 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरह से हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। सो टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 13, 14, 15, 16, 17 एंड एंड अप टू 24 मीन्स 12 hours, 12 o'clock at the midnight in the 12 hour clock is equal to the 24 hours in the 24 hour क्लॉक। सो इस तरह से आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे 24 आवर क्लॉक में और 12 आवर क्लॉक में। आप एक दूसरे को इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो, वो हम देखेंगे किस तरह से हम 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और 12 आवर को 24 आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द टेबल वी हैव सीन एंड हियर इज द एग्जाम्पल आई कैन गिव यू सो दैट ऑल द थिंग्स गेट इजिली क्लियर टू यू। जैसे कि 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो जो 12 आवर क्लॉक में हम टाइम लिखेंगे वो होगा 6 AM, और जो 24 आवर क्लॉक है उसमें भी क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0600 आवर्स, मतलब इसमें तो 6 ही रहेगा, ये मॉर्निंग का टाइम है। बट जो इवनिंग का टाइम है 12 आवर क्लॉक्स में, जैसे 2 PM है, वो तो 2 PM लिखेंगे हम, ठीक है, 2 बज रहे हैं तो उसको हम 2 PM लिखेंगे 12 आवर्स में। पर 24 आवर सिस्टम में हम उसको लिखेंगे 14। आपको पता ही है कि उसके बाद में हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, 1 को हम 13 लिखते हैं और 2 को फिर हम क्या लिखेंगे 14। तो ये है उसको 24 आवर में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो नेक्स्ट आर द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। द रूल्स आर वेरी सिंपल एज आई हैव शोन द टेबल टू यू। अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट द 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 00 हैं आवर्स हैं वो 24 आवर क्लॉक में, वो 12 आवर क्लॉक में हम उसको बोलेंगे 12 o'clock मिडनाइट, मतलब 00 जैसे वो रात में स्टार्ट हो रहा है टाइम, रात के 00 24 आवर क्लॉक में, और 12 आवर क्लॉक में वो होंगे 12 o'clock मिडनाइट। और जो 12 बजे होंगे इसमें 24 आवर क्लॉक में, उसको हम लिखेंगे 12 o'clock एट नून, मतलब कि जो दोपहर का टाइम होगा उसको हम 12 o'clock नून। साथ में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से 12 हैं, कि वेदर इट इज ऑफ इवनिंग और वेदर इट इज ऑफ मॉर्निंग। तो जो इवनिंग का है उसको हम नून के साथ लिखेंगे और जो मॉर्निंग का उसको हम मिडनाइट के साथ लिखेंगे, और इसमें हम उसको 00 और इसमें हम उसको 12 लिखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड इज इफ द नंबर ऑफ आवर्स इन द 24 आवर क्लॉक इज लेस देन 12 देन देर विल बी नो चेंज एंड सेम टाइम इज रिटन विद AM। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अगर तो जो नंबर ऑफ आवर्स है 24 आवर क्लॉक में लेस देन 12 है, फिर तो टाइम वैसे ही चलेगा जैसे 12 आवर क्लॉक में चलता है, कि अगर 10:30 बज रहे हैं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो उसको हम 24 आवर्स में भी ऐसे लिखेंगे और 12 आवर में भी वो ऐसे लिखा जाएगा 10:30। पर अगर 12 बजे की बाद की बात हो रही है, जैसे कि 1 की बात की थी जहां हमने 2 PM 2 बजे की बात की थी, तो वो जो है 24 आवर क्लॉक में हम उसको लिखेंगे 14 के साथ, और 12 आवर क्लॉक में हम उसको 2 PM के साथ लिखेंगे। तो ये इसका सिस्टम है। थर्ड जो रूल है, इफ द
number of hours in 24-hour clock is greater than 12, then to convert this time in 12-hour clock we have to subtract 12 from this number of hours and we will write PM after it. हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर 12 बजे के बाद वाला टाइम होगा तो हम उसको 13, 14, 15, 16 के साथ स्टार्ट करेंगे, और अगर हमें इस 24-hour क्लॉक के टाइम को 12-hour क्लॉक के टाइम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 12 आवर है इसमें ऐड है, 24 आवर में ऐड है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, जैसे 22:40 है, मतलब ये है 24 आवर क्लॉक में 22 hours and 40 minutes इन 24 आवर क्लॉक। अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये कितने बज रहे हैं, जैसे कि हमें हैबिचुअल हैं 10 की, 11 की, 12 की, उसके बाद हम यूज़ नहीं करते 13, 14, हम यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4। पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन 22 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कितने आवर्स मिल जाएंगे हमें, 10। तो इसका मतलब है कि कितने आवर्स, कितने घंटे हो रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, और जो मिनट्स है वो एज इट इज ही चलेंगे, वो 40 मिनट साथ में ऐसे रहेंगे और साथ में हम इसके PM डाल देंगे। PM तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो टाइम है ये इवनिंग का टाइम है, ऑब्वियसली इट इज इवनिंग टाइम, सो ये PM हम इसके साथ लिखेंगे, सो द टाइम इज 10:40। मतलब अगर 12 बजे के बाद की टाइम की बात करते हैं तो, और अगर हमें कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक के टाइम को 12 आवर क्लॉक के टाइम में, तो हमें इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे विद विच यू कैन कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम। सो देर आर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज कन्वर्शंस. First numerical is, a movie started at 3:40 p.m. If it is of 2 hours and 50 minutes duration, at what time will the movie end? जो मूवी स्टार्ट हो रही है 3:40 PM पे, और जो इसका टाइम है, मतलब वो पूरी मूवी के टाइम में बाद में वो कितने टाइम बाद खत्म होती है, 2 घंटों में और 50 मिनट्स में। तो स्टार्टिंग टाइम तो मूवी का इतना है 3:40 PM, मतलब 3:40 पे वो स्टार्ट हुई और उसके बाद में वो 2 घंटे और 50 मिनट के बाद खत्म हुई। तो हमें खत्म, मतलब जहां पर मूवी खत्म हो रही है वही टाइम हमें फाइंड करना, ड्यूरेशन इतनी है, मूवी की ड्यूरेशन इतनी है। तो ऑब्वियसली हम इसमें ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। जो आवर्स है वो आवर्स में ऐड होंगे और जो मिनट्स है वो मिनट्स में ऐड होंगे। तो आवर्स क्या है हमारे पास, आवर्स 3 and 2, आवर्स में ऐड होंगे और मिनट्स में ऐड होंगे। 3 + 2 hours and 40 + 50 मिनट्स बन जाएंगे। तो ये कितने आवर्स बन गए, 5 hours, और ये कितने मिनट्स बन गए, 90 मिनट्स। सो इट कैन बी रिटन एज 5 hours and 90 minutes। 90 मिनट्स को हम लिख सकते हैं ऐसे 60 + 30 मिनट्स, क्योंकि 60 + 30 क्या होगा, 90 होगा। तो आपको पता है कि जो 60 + 30 मिनट्स है, मतलब इट इज 60 minutes and 30 minutes। 60 मिनट्स कितने आवर्स के इक्वल होते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hour। ये हमें पता है कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो ये जो 60 मिनट्स हैं उसका क्या बन जाएगा, 1 hour, और ये 1 hour इसमें ऐड हो जाएगा। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 hours, और साथ में इसके कितने मिनट्स होंगे, 30 मिनट्स। ये तो साथ में ऐसे रहेंगे। तो जो मूवी है वो कब खत्म होगी, द मूवी विल एंड एट 6:30 PM। दैट मीन्स सो 2 hours 50 minutes आफ्टर 3:40 PM वुड बी 6:30 PM। मतलब जो मूवी खत्म होगी इस टाइम पे खत्म होगी। ये टाइम पूछा गया था हमें, उसकी ड्यूरेशन इतनी थी, और जब हमने इसको सॉल्व किया, इसमें ये टाइम ऐड किया और इतने मिनट्स बन गए, और फिर इन मिनट्स को हमने 1 hour इसमें ऐड कर दिए 5 hours से, और इसमें एक और आवर ऐड हो गए इन मिनट्स की वजह से, तो वो 6 hours बन गए और 30 मिनट्स। तो इस वजह से मूवी विल एंड एट 6:30 PM। सो नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट 16 hours and 55 minutes to 12-hour clock time। हाँ जी, obviously this time is in 24-hour clock and we have to convert it into 12 hour। so कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 12 बजे से ज़्यादा वाला टाइम हमारे पास आ रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। जस्ट हम जो आवर्स हैं, हाँ जी, इसमें 16 है वो आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आवर्स है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 को, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। सो 16 - 12 इज इक्वल टू 4। तो कितने आवर्स होंगे, इट विल बी 4 hours and 55 PM। मिनट्स तो सेम ही रहेंगे, तो जो टाइम होगा 12 आवर क्लॉक में, दैट विल बी इक्वल टू 4 hour and 55 minutes इन 12 hour clock। So this is the way in which you can do the conversions. This is very easy and I will give you some
problems based on this. So I hope you will understand these topics. Thank you.